Here we start chapter 6, and it is about validity concepts. There are so many concepts relevant to validity that Swardik, the author, named this chapter as validity concepts. You will learn various concepts relevant to validity, and I hope you might clarify most of these. About testing and measurement, there are so many misconceptions, and the understanding is so superficial that we are generally poor in understanding measurement. However, starting with definition, the definition of the term validity. The first part of the definition is very familiar, and you must have learned it by heart. That validity is how well a test measures what it purports to measure. Continue with this and add to it in a particular context. टेस्टिंग का एक कॉन्टेक्स्ट है. You have a test for particular people and for particular uses and purposes under particular conditions. Once these things change, and these things change with the time also, and they definitely change with different cultures, languages, and countries, then we cannot safely assume that this test, which was valid last time, is valid this time as well. Think of several imported tests, foreign-based tests. We have been using them here. But they were not designed for us. They were designed for Americans, for European, for Westerners who come from a different cultural, religious, socio-economic background. So the conditions change. When the conditions change, culture change, people also change. Even within a culture, across time, things change. Therefore, a test developed in America may have to be changed slightly in the sense that this is revised. It is no more as valid or as good. It is revised. You see, WAIS, Vascular Adult Intelligence Tests, have gone through so many revisions. Likewise, MMPI, a very classical test, has also gone through several revisions. NEO-PI inventory has similarly gone through various revisions. So a test has to be updated. It has to be sensibly used. And see if the test was designed for the people on whom I am going to administer the test. And also think, was it designed for the purpose for which I am using here? So these things have to be taken care of. So the context is very important. That is why I have shown it in red color. So it is not enough saying that a test measures what it purports to measure. It does not measure the same thing across borders, across cultures, across ages, across languages. Once you translate a test into Urdu language, it becomes a new entity. You cannot anymore assume that it is as much reliable as it was in the English version. Well, number 2 point, if these boundaries are exceeded,
What do you mean by boundaries? People. You are using it on different people. You are using it for a different purpose and in a different condition. Then validity of the test may be in question. So, critically consider before you use a test whether it is valid. Not only that you look into the manual and you quote that it is valid this much 0.78. Think logically. Valid means, am I going to apply the test on the same people for whom it was designed? Okay. The third line further clarifies it. And I have taken this quote from your author of your textbook, who is an American, and says no test is universally valid. No test is universally valid for all times. Even within a country, it is not valid for all times. The major reason for revision of MMPI and Wales is that they are nearly 80 years old tests. And people have changed, their thought pattern has changed, the language and the vocabulary has changed, lifestyle have changed, knowledge has enhanced, and so many things. We are not the same people now as we used to be, or as our forefathers used to be 60 or 80 years, 100 years before. So no test is universally valid. No test is valid for all times, for all uses, for all conditions, and for all people. So we have to be very clear. Moreover, a test is valid, and by test we do not mean a booklet of 4 pages. That is not a test. The outcome of a test is its score. Whether the score is good enough to work in our culture, whether that score is predictive enough, meaningful enough, useful and relevant enough. If not, the test is not valid. So remember, it is not only the validity of the contents, it is the validity of the टेस्ट स्कोर। मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ। आपने सुना होगा और शायद आप खुद भी यकीन रखते हो कि हमारा ग्रेजुएट एक ग्रामेटिकली करेक्ट एप्लीकेशन नहीं लिख सकता अपने एचओडी को, अपने वीसी या प्रिंसिपल को। है वो फर्स्ट डिवीजन बीए, दरखास्त नहीं लिख सकता करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, तो हम क्या कहेंगे? उसकी डिग्री वैलिड है? 60% मार्क्स क्या की यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज इट्स गुडनेस? अगर सारा वो यूनिवर्सिटी का इम्तहान देने के बाद तय हो गया कि इसके 60% नंबर हैं, ये फर्स्ट डिवीजन है और ये है रही इसकी डिग्री, और उस डिग्री याफ्ता शख्स का आउटकम ये है कि वो दरखास्त एक नहीं लिख सकता, तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीए का इम्तिहान वैलिड नहीं है। इम्तिहान भी तो टेस्ट था ना, और उसमें एरर स्कोर कितना है आपको पता है। पार्शल स्टडी, 100% चॉइस, आधा सिलेबस आप पढ़ लें तो पूरा सिलेबस कवर हो गया कि अंकल लिखा होता है 10 में से कोई से 5 सवाल करें, और फिर एग्जामिनर और नकलें और बूटी और वगैरह वगैरह, ऑल काइंड्स ऑफ। मैं टेस्टिंग की सेंस में कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमने एरर स्कोर का रिलायबिलिटी में पढ़ा था, तो ये मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो याद रखें, हम किसी कागज़ के पुर्जे टेस्ट को नहीं कहते वैलिड या इनवैलिड। उसका जो निचोड़ है, उसका जो अर्क है, टेस्ट स्कोर,
टेस्ट स्कोर कितना वैलिड है। स्कोर ये कह रहा है कि ये फर्स्ट डिविजनर है, परफॉर्मेंस ये है कि दरखास्त नहीं लिख सकता। सो हमेशा सोचिए इस टर्म्स में कि टेस्ट से हासिल होने वाला स्कोर वैलिड है, अगर वो वैलिड नहीं तो टेस्ट वैलिड नहीं। एक और बात इसी लाइन में कि कोई भी टेस्ट वैलिड या इनवैलिड नहीं होता। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ यस और नो, इट इज अ मैटर ऑफ डिग्री। हाई वैलिडिटी है, मीडियम वैलिडिटी है, लो वैलिडिटी है। आमतौर पे लिटरेचर में ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, कोट acceptable and weak, whether the reliability coefficient, validity coefficient is acceptable by psychometric standards or it is weak. हम कहते हैं ये कमज़ोर है इसकी वैलिडिटी। जिस तरह फर्स्ट डिविजनर ग्रेजुएट की तालीमी सेहत वीक या कमज़ोर है। पांचवा पॉइंट ये है कि वैलिडिटी इज नॉट ऑल टाइम असेसमेंट। ये नहीं आपने आज सन 2001 में वैलिडिटी तय कर ली तो आप कहेंगे ये 50 साल तक ठीक है। डिपेंड करता है ज़माने किस तेज़ी से चेंज हो रहा है। ज़माने से मुराद लोग, ये टेस्ट बना किसके लिए? लोगों के लिए। अगर लोग चेंज हो रहे हैं 20-30 साल, एक जनरेशन के बाद वो नहीं रहे, तो 20-30 साल वाला पुराना टेस्ट भी उतना अच्छा इफेक्टिव मेजरमेंट टूल नहीं है। और इसमें आगे लिखा है वैलिडिटी में डिमिनिश एज कल्चर और टाइम्स चेंज। मैं यही कह रहा था, वक़्त के साथ ज़बान, इस्तारे, कैपेसिटीज़, कॉम्पिटेंसीज़, सोच, अंदाज, लाइफस्टाइल, ट्रेंड्स, इंटरेस्ट बदल जाते हैं। तो टाइम की तब्दीली, कल्चर की तब्दीली, आपने देखा होगा जो लोग दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, दूसरे कल्चर में चले जाते हैं, किस तरह उनके बिहेवियर से ख़ास एक तब्दीली नुमायाँ होती है। तो वैलिडिटी इज़ नॉट एन ऑल टाइम असेसमेंट कि हमने पहली दफ़ा कर ली तो ये 40 साल या 30 साल चलेगी। एक लफ्ज़ है यहाँ अगला लाल स्याही से, वैलिडेशन। वैलिडेशन इज़ ए प्रोसेस और इज़ ए प्रोसीजर। जब हम वैलिडिटी इंडेक्स इस्टेब्लिश करते हैं कि 0.8 है या 0.7 है या 0.4 है, तो एक प्रोसेस से, एक प्रोसीजर से गुजरते हैं। उस प्रोसेस का नाम है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एविडेंस अबाउट वैलिडिटी। ये टेस्ट वैलिड है कि नहीं, एक प्रोसेस से गुजरेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैलिडेशन। एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस वी विल कलेक्ट सर्टेन एविडेंस। और वो एविडेंस क्या होगी? यू अप्लाइड द टेस्ट, you got data and you analyzed the data and on the basis of that analysis you find some validity index, your validity coefficient। तो ये आपकी एविडेंस है, सबूत है, शहादत है। कोई चैलेंज कह रहे कि आपका टेस्ट वैलिड नहीं है तो आप उसको ये सबूत देंगे। और कोई नहीं तो अदालत तो चैलेंज कर सकती है कि आपने ये टेस्ट जॉब के लिए इस्तेमाल किया। ये मेरे पास एक अदालत में दरखास्त है, ये कहता है कि टेस्ट बायस था। अमेरिका में ऐसे बेशुमार मुकदमात चले हैं। तो टेस्टर साहब, आप साबित करेंगे आपका टेस्ट वैलिड है तो फिर वहाँ आपको वो एविडेंस दिखानी होगी। अच्छा, ये वैलिडेशन करना, वैलिडिटी इस्टेब्लिश करना, हुज जॉब इज दिस? नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम तो ये काम है टेस्ट डेवलपर का। सिंस ही
develops a test, and by test development means arranging a booklet, collecting norms, and examining or creating evidence for the reliability, validity of the test, establishing standardization procedure. All these things are then shown in the manual. So manual is a book which completely describes the history of the test development, the approach that the test author followed, the theory that this test subscribes to, the researches that have been taken, carried out about this test, validity studies, reliability studies, normative studies of the author as well as of those people, other users who researched about that test. तो पहला तो उसका काम है, और उसके बाद किसका काम है? टेस्ट यूजर का. लास्ट पॉइंट, टेस्ट यूजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी to make sure that he or she is making a valid application of that test. By valid application means he or she should make sure that the test is relevant to the people on whom he or she is going to administer, and she or he has the relevant norms and other conditions of test administration that he or she might have followed. Any change, deliberate or otherwise, would lead to different results. This is what is called local validation studies. अगर हमने रेवन प्रोग्रेसेस मैट्रिसेस मंगवा लिया है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले हम लोकली उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स एस्टैब्लिश करें. On the population in which we are interested, on the test takers on whom we have to administer the test, because they say the test taker of your country, of your areas may be significantly different from the population where the test was standardized and where the test originated. इसीलिए लोकल टेस्ट की बड़ी कदर है, इंडिजिनस टेस्ट की बड़ी कदर है. जब भी हम रेडीमेड टेस्ट बोरो कर लेते हैं तो उसमें बड़ी एहतियातें ज़रूरी हैं, और ये एक एहतियात आज वैलिडिटी की हम पढ़ रहे हैं. देखिए कि ये हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं. वैलिड मीन्स यूज़फुल, मीनिंगफुल. नेक्स्ट स्लाइड. Your chapter covers 3 types of validity strategies. These are different strategies of validation. You may follow one or the second or the third, or you may follow all the 3. No harm in it. But certainly tests are usually of different types, and 1 or 2 of these strategies of validation may be more relevant to a particular test than other strategies. So beginning with content strategy, content validity. What is content validity? Looking at the content of the test. If the contents are valid, and remember valid means relevant and useful. Relevant and useful. How do we do that? We systematically examine all the items. We scrutinize the test contents, deciding whether each item of the test is relevant
to the construct that is being measured by that test or scale. Say there is an extroversion scale, and we have to make sure that each item measures extroversion and nothing else. And secondly, it comprehensively measures. You know, every construct has a domain. Think what behavior includes extroversion. What behaviors cover the construct or the domain of extroversion? And then decide whether your test of 15 items or 20 items measures or covers that domain or universe adequately or not. एक सादा मिसाल इसकी यूं है कि content validity is very relevant to educational test. एजुकेशनल टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी बहुत अहम है. मैथ के टेस्ट में केमिस्ट्री के सवाल ना हो, वरना लगेगा कि ये तो वैलिड नहीं है. ऊपर लिखा है मैथ का टेस्ट, सवाल इसमें केमिस्ट्री के हैं. या लिखा है मैथ का टेस्ट और अंग्रेजी इतनी मुश्किल है कि पाकिस्तानियों को ये और रूरल एरियाज के लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही, वोकैबुलरी ऐसी. तो कहने को तो ये मैथ का टेस्ट है, लेकिन अच्छा खासा अंग्रेजी का भी टेस्ट है. तो जिनका स्कोर मुरतब होगा वो मैथ के हाथों भी मारे जाएंगे और अंग्रेजी के हाथों भी मारे जाएंगे. तो जो स्कोर मुरतब होगा वो मैथ ज़्यादा भी होगा और अंग्रेजी ज़्यादा भी होगा. सो मेक श्योर कंटेंट वैलिडिटी ये है, द टेस्ट शुड कवर द मेजर डोमेन, द मेजर कंस्ट्रक्ट एंड नथिंग एल्स. आपके आइटम्स उसी सूरत में होमोजेनस होंगे और प्योरली और एक्सक्लूसिवली उस ट्रेट को कवर कर रहे होंगे. तो अचीवमेंट टेस्ट, एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट की मैं मिसाल देता हूँ. आपको पता है अचीवमेंट टेस्ट इज यूज एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड हाउ मच ए लर्नर हैज गैदर्ड फ्रॉम द कोर्स. तो अगर 60 नंबर किसी के हैं और एक दूसरे के 40 नंबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये स्कोर बताते हैं कि इसकी लर्निंग कितनी हुई. एक की 60% हुई, एक की 40% हुई. अचीवमेंट टेस्ट ये है ना. मैं अभी कंटेंट वैलिडिटी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है. लेकिन इससे पहले कि हम इसको एडमिनिस्टर करके ये देखें कि किस बच्चे की कितनी अचीवमेंट है, अभी पहले देखें क्या इसके कंटेंट वैलिड है. अप्लाई करने से पहले, इस्तेमाल से पहले, टेस्ट यूज करने से इसके आइटम्स वैलिड हैं. तो कंटेंट वैलिडिटी इसकी कैसे तय होगी, ये आगे लिखा है. इफ कंटेंट मटेरियल कवर्ड इन द टेस्ट अप्रॉक्सीमेट्स प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल कवर्ड इन द कोर्स. सादा लफ्जों में यह है कि अगर उस किताब के 12 चैप्टर हैं जो आपने सेमेस्टर में पढ़ी और टेस्ट सिर्फ 6 चैप्टर्स के मुताल्लिक है, तो हम नहीं कह सकते कि ये टेस्ट इस किताब का अक्कास है और इसके रिजल्ट के बेसिस पे हम कह सकें कि हाँ इस बच्चे को किताब आती है, क्योंकि उसमें तो कवरेज ही आती है. ठीक है. या बाज 2 चैप्टर्स के मुताल्लिक 5 सवाल हैं सिर्फ 2 चैप्टर्स के मुताल्लिक, और बाकी के 5 सवाल बाकी 12 चैप्टर्स के मुताल्लिक हैं. तो लफ्ज़ प्रोपोर्शन पे गौर करें. प्रोपोर्शन, बुक का कितना प्रोपोर्शन
टेस्ट में डाला गया है, टेस्ट क्वेश्चंस में, क्या ये एडिकेटली पूरी किताब का टेस्ट कहा जा सकता है? तो इसमें दो चीजें हैं, प्रोपोर्शन का ख्याल रखें और सेकेंडली द टेस्ट कंटेंट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल कोर्स बुक। अच्छा, कोर्स बुक को कहेंगे बिहेवियर, पॉपुलेशन बिहेवियर, यानी इतना बिहेवियर या इतने कंटेंट या इतना मैथ हमने सीखना था, जो कि किताब में दर्ज है। 180 सफ़े की 12 चैप्टर्स की किताब में उसके मुतालिक कितना नुमाइंदा है ये टेस्ट। अगर पहले 4 चैप्टर खाए गए हैं, आखिरी 2 भी खाए गए हैं, अगर टेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंटेंट्स नहीं और उसमें ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल कवर नहीं किया गया तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी सस्पिशियस है, डाउटफुल है, बल्कि डिफेक्टिव है। इसी का नतीजा है कि ये टेस्ट और इम्तिहान और बीए पास करने वाला, फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाला दरखास्त नहीं लिख सकता। उसने सारा कोर्स ही नहीं पढ़ा, उसने शायद बीए ही आधा पौना किया हुआ है, मगर सर्टिफिकेट और डिग्री पूरे बीए की है। तो सवाल उठता है सब इम्तिहानात पे, टेस्ट पे। मैं कंटेंट वैलिडिटी के नंबर 2 पॉइंट पे हूं। एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है। अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में क्या होना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं जी पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमसे इस्लामियात के सवाल पूछे, तो जी इस्लामियात का जॉब से क्या ताल्लुक है? मैं तो मेडिकल ऑफिसर हूँ और मुझसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के सवाल पूछे, तो मेडिकल प्रैक्टिस में पाकिस्तान या हिंदुस्तान या अमेरिका या कनाडा के लैंग्वेज, कल्चर और लोगों का क्या ताल्लुक है? तो यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट खा रिटन हो या इंटरव्यू हो, उस पर सवाल उठते हैं। आप भी किसी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में फेल हो गए तो सवालों पे, उसके कंटेंट पे सवाल उठाएंगे। तो अगर आप ये साबित ना कर सकें कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में या जॉब टेस्ट में आपने वो सवाल रखे हैं जिनका आपके एक्चुअल जॉब से ताल्लुक है, यू आर मेजरिंग जॉब रिलेटेड स्किल एंड नॉलेज, और वो भी ड्यूली वेरीफाइड बाय एक्सपर्ट्स कि हाँ ये टेस्ट, इसके कंटेंट, इसके मंदरजात, इसके आइटम्स, इसके सवाल वैलिड हैं because they are relevant to the nature of job and the required abilities and skills required in a job। लेकिन टेस्ट क्यों लेते हैं? आपने जॉब के लिए सूटेबल लोगों की तलाश करनी है। अगर एक थर्मामीटर का पारा ही गिरा हुआ है तो वो क्या मेजर करेगा? वो टेम्परेचर नहीं मेजर करेगा। अगर टेस्ट की कंटेंट ही रेलेवेंट टू दी जॉब नहीं है तो आप बताएं उस टेस्ट की गुडनेस या उसकी वैलिडिटी, बिलखसूस कंटेंट वैलिडिटी तो धेले की नहीं है। बहुत एहतियात होने की ज़रूरत है। बाहर यूरोप की किताबों में बड़े ऐसे केसेस मिले हैं, नाकाम उम्मीदवार अदालतों में गए हैं और उन्होंने कहा है जी ये टेस्ट रेलेवेंट नहीं था, बल्कि वो कह देते हैं ये टेस्ट बायस था। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी वो टेस्ट से पहले ही सिलेक्शन हो चुकी हुई है। ये चीज़ गर्दिश करती है ना जी, टेस्ट इम्तिहान तो बराए नाम कार्रवाई है, सिलेक्शन हो चुकी हुई है। तो इसी किस्म का यूं देखिए, ये भी एक बायस बताते हैं। लोग जज हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं, जनाब ये मेरा हुआ नहीं है, मेरी ये फलां फलां की डिग्री है, मैं इतना काबिल हूँ, मैं इस टेस्ट को चैलेंज करता हूँ, आप फैसला दें ये टेस्ट वैलिड है कि नहीं।
तो फिर ऐसे में जज साहब उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे कि साबित करें आपने ये टेस्ट इस्तेमाल किया है, इस शख्स को एक शिकायत है, इस शख्स को और अदालत को मुतमईन करें। तो अगर वहां आप साबित ना कर सके और उस टेस्ट की वैलिडिटी ढीली रही तो आपका फैसला और भर्तियां क्वैश हो जाएंगी, कलअदम हो जाएंगी। बेशुमार केसेस में यूरोप, वेस्ट और अमेरिका में ऐसा हुआ है। आपकी टेस्टिंग की किताबों में उनका जिक्र है, अगर आप पढ़ें तो, ख़ास तौर पे आखिरी चैप्टर जिसमें टेस्टिंग एंड लॉ का ताल्लुक है। टेस्टिंग और लॉ शायद चैप्टर का, अक्सर टेस्टिंग की किताबों में एक चैप्टर है, वो देखें टेस्ट की बुना पे कौन कौन से मुकदमात बने और क्या क्या उनके सोल्यूशन हो। आफ्टर ऑल एज टेस्टर आप सोसाइटी के लोगों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। आप किसी को सिलेक्ट और किसी को रिजेक्ट करने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपसे पूछगछ हो कि आप जो आला जो टेस्ट इस्तेमाल होते कर रहे हैं ये कितना वैलिड है। तो अक्सर आखिरी लाइन है, कोर्ट्स ऑफन रिक्वायर एविडेंस, डेटा, शहादत, दैट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर वर्क रिलेटेड। और अगर वो वर्क रिलेटेड नहीं है तो वैलिड नहीं है, फिर तो वैसे ही उनको आप जॉब दे देते। और अगर हम कहते हैं कि हमें वर्क रिलेटेड टेस्ट बनाने हैं जैसा कि रिक्वायरमेंट है, तो फिर उस क्या देखा जाएगा, अदालत में क्या देखा जाएगा, उस सवालनामे को पढ़ा जाएगा, उस टेस्ट मटेरियल को पढ़ा जाएगा, उस टेस्ट के आइटम्स को पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि इसका इससे क्या ताल्लुक है। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड 3। कैसे जानें कि किसी टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी कितनी है? ये हम पिछली स्लाइड में दे सके कि इट्स ए मैटर ऑफ डिग्री। हमने नाप तोल करके, ये लफ्ज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या कहता है, मेजर करो, वैलिडिटी को भी मेजर करना। और आपको बताया वैलिडिटी को रिलेशन कोएफिशिएंट से मालूम होती है। एक 100% तो कोई मेजरमेंट नहीं होती, 0.99 और उससे नीचे होगा। कंटेंट वैलिडिटी को कैसे मेजर करें, तो उसके मेजर करने से मुताल्लिक ये स्लाइड है। लॉश ने एक मेथड, बड़ा कदीम मेथड है, आजकल भी चलता है, एक निकाला है कंटेंट वैलिडिटी को क्वांटिफाई करने का। और इसे क्वांटिफाई ऐसे किया जाता है कि कंटेंट को एक्सपर्ट के हवाले कर दिया जाता है। गोया आपकी आइटम पूल, आपकी बुकलेट, आपका क्वेश्चनर विल बी गिवन टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन होंगे? जो उस एरिया में माहिर हैं। अगर मैथ का टेस्ट है तो एमएससी मैथ होगा, और अगर वेल बीइंग का, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग का टेस्ट है तो फिर आप जैसे एमएससी और बीएस साइकोलॉजिस्ट होंगे। आप इस एरिया को जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, सो यू विल बी द एक्सपर्ट। आपको वो टेस्ट मटेरियल थमा दिया जाएगा एंड यू विल डिसाइड on each item, each particular item, and you will rate each particular item on these 3 things. ये सवाल आप अपने आप से करेंगे, is the skill or knowledge measured by this item? मसलन अगर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है तो जो जो स्किल्स चाहिए, क्या वो स्किल ये मेजर आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 मेजर करता है? तो आप अपना जवाब देते हैं कि ये आइटम इसेंशियल है, ज़रूरी है इस जॉब के लिए। या आपका जवाब ये भी हो सकता है कि ये यूज़फुल है लेकिन इसेंशियल नहीं है,
गोया रेलेवेंट है, काम का है, इतना ज़रूरी नहीं है। या आप बिल्कुल ये कह देते हैं कि नॉट नेसेसरी, ये यानी ज़रूरी ही नहीं है, गोया इस आइटम को डिस्कार्ड कर दिया जाए। गोया एज एन एक्सपर्ट्स यू have 3 options and you will rate each item on these 3. Maybe कुछ items को आप essential समझें, आपकी rating ये है, कुछ items को आप useful but not essential समझें, और कुछ items को आप not necessary समझें। अब expert एक नहीं होता, आप जैसे 5, 7, 10 हो सकते हैं, और उन सब की जजमेंट और रेटिंग को एवरेज करके देखा जाएगा, ताकि उसमें एक ठहराव, तवाज़ुन और एक कलेक्टिव विजडम और बैलेंस आ जाए। जब ये डाटा जमा हो जाएगा, देखें ये है एविडेंस फॉर वैलिडिटी, दैट यू इनवाइटेड 10 experts and you delivered them the test content as well as the requirements for this test. According to the requirements and the test contents, they will rate each item, and at the end you will pool the ratings or judgment of all the 10 panelists or judges or expert raters, ताकि आप मीनिंगफुली समराइज करें इस डाटा को। स्टैटिस्टिक्स की तारीफ क्या पड़ी थी? It is a tool which summarizes data. 2000 लोगों के डाटे को, स्कोर को समराइज करके आप उसका एक मीन निकाल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी आप ये 10 लोग हैं, 30 आइटम हैं, 3 तरह की रेटिंग है, सारे डाटे को समराइज करें। समराइज करने के लिए ये फार्मूला नीचे लिखा है, CV is content validity और R stands for ratio। तो ये आगे फार्मूला लिखा है, इसको मिसाल की मदद से एक्सप्लेन भी किया है, और मिसाल ये है, if there are 10 expert judges of whom 5 rate a given item as essential and 2 rate it as useful but not essential and 3 say that it is not necessary, तो इस आइटम की, इस एक की बात हो रही है, एक आइटम की, इस एक आइटम की वैलिडिटी इंडेक्स आप या वैलिडिटी रेशियो आप कैसे निकालेंगे? तो देखो 5 ने कहा था कि ये इसेंशियल है, तो NE मीन्स इसेंशियल, number of people who say E for essential, number of people who say essential। अब इसको माइनस करें कुल लोगों से, कुल एक्सपर्ट से, कुल एक्सपर्ट से 10/2 5 हो गए। इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें अगेन n/2 से, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1। ठीक है, 2.5/2 क्या जवाब आएगा? 1। अब इसको सॉल्व करें, 5 - 1 आ जाएगा, 5 - 1, तो बचा 4। 4 को आप 0.40 से एक्सप्रेस करेंगे। रिलायबिलिटी इज ऑलवेज इन डेसिमल। कोई चीज़ 100% परफेक्ट वैलिड हो तो 1 वैलिडिटी होगी, ऐसी तो कभी हो ही नहीं सकती। 0.99 से नीचे आते जाएं। अब ये एक आइटम है जिसका CVR इंडेक्स 0.40 निकला है। इसी तरह आइटम 2 का, 3 का, यही एक्सपर्ट्स बारी बारी यार आइटम का निकालेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, गौर से सुने। आपके पास आजकल
कंटेंट वैलिडिटी का एक क्वेश्चन है घूम रहा है। 20 आइटम्स, ये 20 आइटम्स वो हैं जो आपने अपनी असाइनमेंट 1 में तजवीज़ किए हैं। मैंने कहा था कि यहाँ के लोगों की वेल बीइंग मुख्तलिफ होगी यूरोप के लोगों की वेल बीइंग से, ठीक है। उधर लोग सुबह कमाते हैं, शाम को सारा खर्चा कर डालते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी नहीं होती। उनकी वेल बीइंग को ये इल्म है कि कल अगर मैं भूखा रह गया तो सरकार मुझे पैसे दे देगी, बेरोज़गारी अलाउंस मिलता है, एक्सीडेंट हो गया तो अस्पताल से मुफ्त इलाज है। अब यहाँ का शख्स अगर जो दिन में कमाए रात सारे खर्च करके बैठ जाए तो उसकी वेल बीइंग ख़राब हो जाएगी कि बीमारी या कल नौकरी या दिहाड़ी ना लगने की सूरत में क्या करूँगा। तो मुझे ख्याल आया कि आपने राइफ का वेल बीइंग स्केल इस्तेमाल किया है, मैंने आपको एक्सपीरियंस दिलाया, आप इस्तेमाल करें, आप इसे स्कोर करें और आप इसको मीनिंगफुली इंटरप्रेट करें। और फिर मैंने एक आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल कि ये टेस्ट बना कैसे, ये स्केल बना कैसे, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हुई, वो आपको तजवीज़ किया ताकि आप इसका रिसर्च लिटरेचर ही पढ़ें। एक टेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 2 सफ़े का टेस्ट पढ़ना काफ़ी नहीं है। इसका माँ बाप क्या है, इसका माजी क्या है, किन किन मराहल से गुजरा, आपको इस पर कितना यकीन और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो आपको असाइनमेंट 1 दी गई जिसमें पहले 4 सवाल उस रिसर्च आर्टिकल से मुताल्लिक थे और आप अपनी वैलिडिटी एज ए स्टूडेंट तय कर लें अशारिया में कितनी है कि आपने उसे कितना जिम्मेदारी से पढ़ा। यह आपकी जिम्मेदारी थी उसे पढ़ने को। दैट वाज ए रिसोर्स which was provided to you and your responsibility was to test, to read it। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं टेस्ट कर लूँ कि पढ़ा है कि नहीं। बहरहाल उसका स्कोर आपको मिला। आखिर में आइटम नंबर 5 में मैंने कहा कि अगर हमने अपना बनाना हो, यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्दों के हालात कार, ज़िंदगी, हमारा कल्चर, सोच, ज़ाविये मुख्तलिफ हैं, तो हमारी वेलबींग कैसी होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ आइटम्स लिखें। कुछ लोगों ने लिखे, कुछ ने सवाल को ही नहीं समझा। तो वो आइटम इकट्ठे करके मैंने 20 आपको दे दिए। मैंने उनको इकट्ठा करके क्वेश्चनर और आपको कहा इसकी कंटेंट वैलिडिटी बताएं एज एक्सपर्ट। आप सबको मैंने एक्सपर्ट बनाया, 23 स्टूडेंट्स। So I have 23 experts whose job was to evaluate the relevance of each item for the construct of well-being, and I think there was a 4-point rating scale और आपने रेटिंग दी। कुछ लोगों की आ गई है, अब तक मेरे पास कुछ को 2-3 दफ़ा कहने के बाद आएगी। हालांकि मैंने इसका रिवॉर्ड रखा है कि क्विज़ 1 में आइटम नंबर 3 कैंसिल हो गया था, इसका एक नंबर है और अगर आप उसको खोलें तो उनको रेट करने में शायद आपके 5 मिनट ना लगे। तो एक नंबर जिन जिन का मुझे रेटिंग मिल रही है मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मैंने आपको कंटेंट वैलिडिटी पढ़ानी है। अब ये एक किस्म की उसकी एक्सरसाइज है और इस पे हम मज़ीद काम करेंगे, जिससे मैं चाहता हूँ कि आप एमफिल टेस्टिंग के कोर्स से मुतल्लिक कम से कम कंटेंट वैलिडिटी तो सीख के जाएं यहाँ से। तो मेरे साथ तावन कीजिए, इसमें मज़ीद काम करें। याद रखें टेस्टिंग के कोर्स में प्रैक्टिकम, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ही असल चीज़ है।
ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ ये तो किताब में भी लिखे हैं, घर बैठ के पढ़ सकते हैं आप। आखिरी स्लाइड। तो तीन वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये पहला इसके कंटेंट के मुतालिक था। इब्तदाई बात होती है, बात शुरू ही आइटम राइटिंग और कंटेंट से होती है, इसलिए कंटेंट वैलिडिटी का जिक्र पहले आता है और अकॉर्डिंगली आप भी पहले पढ़ रहे हैं। टाइटल पे ये लिखा है कंटेंट वैलिडिटी इज ए लॉजिकल फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। इससे क्या मुराद है? आपने लॉजिकली कन्विंस करना है कि आपके टेस्ट के कंटेंट वैलिड है। एज एक्सपर्ट्स आपने लॉजिकली जजमेंट डिटरमिन किया कि हाँ ये आइटम एसेंशियल है, यूजफुल है बट नॉट एसेंशियल या अननेसेसरी है। आपने अपनी रीजनिंग इस्तेमाल की, अपनी कॉमन सेंस, अपना लॉजिक। कोई हमने इसको डाटा को स्टैटिस्टिक्स की मशीन में नहीं डाल दिया। अक्सर लोग स्टैटिस्टिक्स से घबराते हैं, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं निकाला हमने। हाँ, अगली जो हैं 2 किस्में उसमें कोरिलेशन जबरदस्त इस्तेमाल है इसका, इसीलिए टेस्ट ऑथर ने कोरिलेशन आपको चैप्टर 2 या 3 में ही पढ़ा दिया है, जिसका उन्वान है स्टैटिस्टिकल रिफ्रेशर। तो उसने रिफ्रेश कर दिया होगा आपकी स्टैटिस्टिक्स अगर आपने किताब पढ़ी। वो रिफ्रेशर इसलिए कहता है कि उसको पता है कि साइकोलॉजी वाले स्टैटिस्टिक्स का एक इंडिपेंडेंट कोर्स भी पढ़ते हैं। ओके, सो इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा इसे कहते हैं इट इज ए लॉजिकल फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। जबकि आप देखेंगे जो आने वाली हैं वैलिडिटी की एग्जाम, दे आर मोर स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा जो आपने उस फार्मूले से जमा वमा किया है वो अपनी जजमेंट को अरेंज किया है, सम अप किया है। सो ये जो लॉजिकल है, और चूंकि आप में लॉजिक है इसीलिए आपको एज एक्सपर्ट मैंने ये काम दिया है कि आप लॉजिकल वैलिडिटी डिटरमिन करने की प्रैक्टिस करें इस असाइनमेंट से जो कि आपको भेजी है। हर कॉन्सेप्ट जो टेस्टिंग का पढ़ें उसे करके देखें, जस्ट डू इट। अगर उसको करना नहीं आता तो फिर ऐसा ही है जैसे वो दरखास्त नहीं लिख सकता फर्स्ट डिविजनर। सो कंटेंट वैलिडिटी प्रोसीजर क्या है आपने ये देखा। इट इन्वॉल्व्स अ रैशनल जजमेंट, इट इज लार्जली नॉन स्टैटिस्टिकल। तो एक टेस्ट में जो कंटेंट होते हैं उसको कहते हैं बिहेवियर सैंपल। आपने ये तय करना है कि इसके जो गोया मैथ 10वीं जमात के मैथ में बिहेवियर सैंपल क्या है, प्लस के सवाल, एडिशन के सवाल, अंडर रूट के सवाल और जजर के सवाल और रेशो प्रपोर्शन के सवाल और ज्योमेट्री के सवाल, इसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर सैंपल। इसी तरह आप देख लीजिए कि वेलबींग का आपने स्केल लिया तो उसमें बिहेवियर सैंपल था, 18 आइटम्स थे, 18,000 तो नहीं थे ना। फर्ज किया 18,000 अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। वेलबींग की बिहेवियर की पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन से ऑथर ने 18 आइटम्स निकाल लिए जो उसके ख्याल में दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डोमेन और द कंस्ट्रक्ट ऑफ वेलबींग। तो याद रखिए, एक होता है यूनिवर्स या डोमेन
जो उस कॉन्सेप्ट के तमाम बिहेवियर का अहाता करता है। सैंपल बिहेवियर टेस्ट कंटेंट में होते हैं। टेस्ट कंटेंट सैंपल भी, उसमें से एक सैंपल लेता है, उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेता है। जिस तरह न्यूमेरिकल सेंस में आप समझते हैं कि सैंपल्स और पॉपुलेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, इसी वजन पे items as sample behavior in the test booklet should represent the item domain of the whole construct, या जिसे यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर कह सकते, ये मुनासिब है। यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर, उस यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर में फर्ज किया 1800 आइटम्स बनते हैं वेलबींग के, तो ये यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर हो गया। उसमें से हमने 18 बड़े चीदा बड़े ज़बरदस्त निकाल लिए, तो हमने क्या निकाला, उस यूनिवर्स से एक सैंपल निकाला। ये सैंपल ऑफ बिहेवियर है, जिसको हमने 1 2 3 करके 18 सवालात या आइटम की सूरत में अपनी बुकलेट में डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जरूरी है कि हमें कैसे समझ आएगी कि ये बिहेवियर, पूरा यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर क्या है। आप 18 आइटम तो चुनेंगे ना सैंपल बिहेवियर को, अगर आपको यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर मालूम हो तो बिहेवियर का छत्ता किधर है, यूनिवर्स किधर है, छत्ता। एन एग्जामिनेशन ऑफ द लिटरेचर, इसीलिए लिटरेचर पढ़ते हैं। आप कोई रिसर्च करने से पहले उसका लिटरेचर पढ़ते हैं, उस टॉपिक से मुतल्लिक लिटरेचर पढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक की डोमेन क्या है, इसकी हदूद क्या है, इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक थे, इस पे अब तक क्या हो गया है। तो लिटरेचर, उस यूनिवर्स का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा ताकि आप जनरेट कर सकें एडिकेट सैंपलिंग। आप एडिकेट सैंपलिंग कर सकें ऑफ आइटम्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर, कि कहीं ये ना हो कि आप जल्दी से आइटम लिख लें और जब एक्सपर्ट को दें और वो इसकी कंटेंट वैलिडिटी मालूम करें तो पता चले कि ये आइटम्स तो यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर को कवर ही नहीं करते, ये आइटम्स तो अननेसेसरी है। याद रहे उस एक्सपर्ट को भी तो यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर का पता होगा ना, तभी हमने उसे एक्सपर्ट कंटेंट वैलिडिटी जज करने को बुलाया है। तो उससे पहले लाजिम है कि एज टेस्ट ऑथर, एज साइकोलॉजिस्ट, एज टेस्ट यूजर आप खुद देख लें और बाखबर हों कि व्हाट इज द होल यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर इज अबाउट दैट पर्टिकुलर डोमेन। दैट पर्टिकुलर डोमेन में भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश और साइकोलॉजी और डिप्रेशन और पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस और व्हाट नॉट। ये जो कंस्ट्रक्ट है इसको हम डोमेन कहते हैं। आप सोचेंगे कि इसको क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, वो यूनिवर्स ऑफ बिहेवियर होगा और फिर उसमें से सीधा या चौंधे आइटम आप ढूंढ लेंगे एक ज़बरदस्त टेस्ट बनाने के लिए। होपफुली फिर वो एक्सपर्ट भी आपकी तायद कर देंगे और आपका टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी पास कर जाएगा और उसका इंडेक्स अच्छा आ जाएगा। आखिरी पॉइंट, इस मेथड की लिमिटेशंस क्या है। एक्सपर्ट्स और टेस्ट ऑथर खुद बायस्ड हो सकता है टेस्ट बनाने में। अच्छा, एक्सपर्ट्स को तो हम माफ़ कर देते हैं इसलिए कि वो एक नहीं 10 हैं। अब 10 लोग तो 22 नहीं होंगे, अगर 22 हैं तो हम उनको एक्सपर्ट ही मुकर्रर न करें, और अगर हमने कर लिए हैं और उनकी भी एवरेज ली जाएगी
तो टेस्ट ऑथर कहीं बायस ना हो सकता है कि नहीं, टेस्ट ऑथर ही बायस ना हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपने कहीं पढ़ा होगा कि जब इंटेलिजेंस टेस्ट पहले अमेरिका में बने तो उनको कालों ने चैलेंज कर दिया, क्योंकि वो टेस्ट जब इंटेलिजेंस टेस्ट नौकरियों के लिए और जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे तो गोरे आबादी के ज़्यादा प्रपोर्शन से कामयाब होते थे और काले कम कामयाब होते थे। कालों ने टेस्ट को चैलेंज कर दिया, अदालतों में चले गए और अदालतों में टेस्ट ऑथर साबित ना कर सके कि यह अनबाइस्ड है, और कालों ने साबित कर दिया, काले के वकीलों ने साबित कर दिया। ये तो मशहूर लफ्ज़ है ना, टेस्ट में भी बाइस्ड। मैं इसकी एक मिसाल दी है, आप इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ लें, उसमें इनका जिक्र होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेस्ट ऑथर इज बायस्ड। अब ये बायस्ड वो दानिस्ता नहीं होता, एक कल्चर में रह सह के वो उस कल्चर का आदी हो गया होता है, इसीलिए आगे लफ्ज़ है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चर रेलेवेंट कितनी चीजें हैं उसमें, बाहर के टेस्ट जब यहाँ आते हैं तो वो इतने कल्चर रेलेवेंट नहीं रहते, उनके कंटेंट इतने रेलेवेंट नहीं रहते। यहाँ एक मिसाल है, पाकिस्तान के लोग भी और हिंदुस्तान के लोग भी इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, जिसे हम जंग आज़ादी और पाकिस्तान बना, उनकी किताबों ने किस तरह लिखा होगा और हमारी ने कितना कैसे लिखा होगा, आप समझ गए हैं। तो बायस ऑफ द टीचर, बायस ऑफ द मीडिया, बायस ऑफ द स्टूडेंट, बायस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो आप एक जगह रहते हुए उस कल्चर से मुतासर हो ही नहीं सकते। हम कहते हैं ना हमारे MNAs MPs को गरीबों की क्या, वो गरीब हों तो उन्हें पता लगे, उन्हें तो तजर्बा ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं है। एक्चुअली हम ये कह रहे होते हैं कि उनका कल्चर मुख्तलिफ है, वो इस कल्चर में नहीं रहते, वो इस आबादी में नहीं रहते, वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो याद रखें, आप जब टेस्ट इस्तेमाल करें तो देखें जिस आबादी में आप इस टेस्ट को करने जा रहे हैं, क्या ये टेस्ट, इसके कंटेंट उस आबादी में काम करेंगे। और एक दूसरी लिमिटेशन यहाँ ये है, तो ऊपर है बायस एंड लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट राइटर, टेस्ट ऑथर, और सेकंड ये है लेवल ऑफ द एक्सपर्टी ऑफ द पैनलिस्ट।